previous class we will learn about present continuous tense, right? Did you remember in previous class we have studied about present continuous tense? We speak present continuous tense when action is going on and it was not finished yet, right? No. Today we will learn about present simple tense, right? Today we will learn when we will use present simple tense. At what condition we are using present simple tense, right? Okay. This is the situation given to you. Vidya, can you read this? Vidya? Study this Okay. example. Right. Read from here. Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. Okay. So Just wait. Just wait. Okay. What is Alex? Who is Alex? Who is Alex? इंडिया एलेक्स कौन है? कौन है एलेक्स? driver, बस ड्राइवर, driver. राइट? What is he doing now? What is he doing now? He is in bed He asleep. Yes, he is in bed. He is on the bed. He is sleeping, right? But we are saying Alex is a bus driver. Alex is a bus driver is in a present simple tense, right? He is sleeping now. He is on the bed. He is sleeping now. This is present continuous tense. Are you getting me? Yes. Look, this is the negative sentence. Read that sentence, second one. He is not driving a bus. Right? Now he is not driving a bus. If we are saying it in present time, then it will become a present continuous tense. But if we are saying that it's daily work, it's routine, then we will say it in a present simple tense, right? If we are saying anything which is our duty, which is our daily work, which is our daily practice, then we will use this present simple tense, right? Okay, carry on. He is asleep, Now he is sleeping, right? Okay, carry on. but he drives a bus. Look at here. He drives a bus. This is his daily routine, right? That's why we are Yes. putting it in a present simple tense. जो हमारी daily routine होती है, उसको हम present simple tense में pronounce करते हैं. जो action continuously चल रहा है और अभी तक चल रहा है और आगे भी चलेगा, उसको हम present continuous में बोलते हैं. जो हमारी daily routine है, जो हमारे daily के work है, उसको हम present simple में बोलते हैं. Are you getting me? Yes, sir. Okay, carry on. Now look at here. They are written drives, works, do. All these are verbs, right? We use these verbs in a present simple tense, right? Okay. These are I, we, you, they. What are these? I, you, we, they, he, she, it. ये क्या चीजें हैं? Part of speech में इसको क्या कहते हैं? Helping verb. No. इनको I, you, we, they. These are called pronouns, right? Look at here. He, she, it, या I, you, we, they are called pronouns. We will use in place of noun, ना? हम place of noun की जगह पे जो words use करते हैं, that is called pronoun, right? Okay. Now look at here. In present simple tense, we will use these verbs drive, work, do, but we will not use s or es with them. जब हम I, you, we, they या plural यूज करते हैं, सब्जेक्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज करते हैं, तो हम एस नहीं लगाते इन वर्ब्स के साथ. ये जो सिंपल प्रेजेंट के वर्ब्स है ना, जैसे ड्राइव, वर्क, डू, इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाते, राइट? लेकिन जब हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ या ही, शी, इट के साथ, तो हम देखिए एस लगाते हैं. जैसे ही के साथ अगर यूज करेंगे या शी के साथ यूज करेंगे या इट के साथ यूज करेंगे, तो देखो ही ड्राइव्स अ कार, राइट? यहाँ पे देखो ही ड्राइव्स अ बस, ठीक है? एलेक्स सिंगुलर है तो एलेक्स के साथ भी एलेक्स ड्राइव्स अ बस. अगर प्लूरल होता या ये लिखता एलेक्स अपने लिए खुद बोल रहा होता आई ड्राइव अ बस, एलेक्स बोलता तो बोलता आई ड्राइव अ बस. लेकिन अगर हम उसके लिए बोल रहे हैं तो ही ड्राइव्स अ बस, एस लगा रहे हैं. समझ में आ रही है मेरी बात?
Yes, sir. ही शी इट या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम एस लगाते हैं, ठीक है। इंडिया समझ में आ रही है ये वाला पॉइंट। Yes, sir. अगर आई वी यू दे हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो फिर हम एस नहीं लगाते उनके साथ, इन वर्ब्स के साथ एस नहीं लगाते। नीचे और एग्जांपल देखते हैं। ओके, रीड दैट वन। इंडिया रीड इट। We use present simple to tell about things is इन journal. जर्नल, राइट, रुक जाओ यार। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कब बोलते हैं? जब कोई जनरली बात करनी होती है, जब कोई चीज़ जनरली जो बार बार हो रही है या जो रूटीन वर्क है हमारा, उसके बारे में बात करनी हो तो वी विल यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। गॉट इट? ओके, कैरी ऑन। We are not thinking only about now. हम सिर्फ आज का नहीं या अभी का नहीं सोच रहे होते, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम उस वक्त का सोच रहे होते हैं, राइट। जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे तो हम कहते हैं वो एक्शन जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ या जो चल रहा है अभी। लेकिन सिंपल Yes. प्रेजेंट में हम अभी का नहीं सोचे। वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ, व्हाट वी आर थिंकिंग। पढ़ो जरा सेकंड सेंटेंस। We use it to say that something happen all the time or रिपीटेडली, repeatedly, रिपीटेडली, ठीक है। repeatedly or हम that हम समथिंग इज ट्रू something is true. इन जनरल, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, जो चीजें मुसलसल रिपीट हो रही हैं ऑल द टाइम, जैसे ऑल द टाइम आप स्कूल आते हैं, ऑल द टाइम आप पढ़ते हैं, ऑल द टाइम आप ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, ये सारी चीजें आप किस में बोल सकते हैं? वी विल यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, राइट। Yes, कुछ sir. चीजें हैं जो फैक्ट हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, राइट। सन ईस्ट से राइज होता है और सूरज गुरूब कहाँ होता है? मगरिब में, राइट। मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, ऐसा ही है ना। तो Yes, वो sir. जो फैक्ट्स हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो फैक्ट्स Yes. चेंज नहीं कर सकते उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं। दो चीजें हैं, जो हमारी डेली रूटीन है या जो बातें मुसलसल रिपीट हो रही हैं उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं, और जो फैक्ट्स हैं जो ट्रू है जो चेंज नहीं हो रहे जनरल फैक्ट्स हैं उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलते हैं, राइट। आगे चले जरा। It is not important whether the action is happening at the time of speaking. प्रेजेंट कंटिन्यूस में यही कंडीशन थी ना कि एक्शन जो है हैपनिंग होता होगा और कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर एक्शन नहीं भी चल रहा, एक्शन अभी नहीं भी हो रहा, जैसे ये अभी बस ड्राइव तो नहीं कर रहा था ना, लेकिन हम इसको फिर भी कह रहे थे ये क्या है, ही ड्राइव्स अ बस। इसकी रूटीन बता रहे थे, इसकी डेली रूटीन बता रहे थे कि ये ड्राइवर है और ये बस चलाता है, राइट। जब हम इसकी डेली रूटीन बताएंगे तो प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे। वो बातें जो रिपीटेडली होती होंगी वो भी प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे। जो नेचुरल ट्रूथ है, जो बिल्कुल ट्रू है, वो भी हम प्रेजेंट सिंपल में बताएंगे। गॉट इट? आगे पढ़ते हैं, अभी एग्जांपल पढ़ते हैं, आपको और क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक, रीड दिस वन। Nurses look after patients in hospitals. ये फैक्ट है, ट्रुथ है ये। आप जिस भी हॉस्पिटल में चले जाएं, यू विल सी दैट नर्सेज आर लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, वो केयर करती हैं पेशेंट की, है ना। ये एक Yes, ट्रुथ है, जनरल ट्रुथ है, राइट। ओके, आगे चलें। I usually go away at weekdays. वीकेंड, गो अवे का मतलब बाहर जाता हूँ, वीकेंड्स पे बाहर जाता हूँ। ये क्या है, जनरल ट्रुथ है या रूटीन है? General truth है. जनरल ट्रुथ नहीं है, ये रूटीन है उसकी। ये उसकी रूटीन है कि वो हर वीकेंड पे बाहर जाता है, Weekend पे राइट। जाता है. ओके, Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट वन। The earth goes round the sun. अर्थ गोज राउंड द सन, व्हाट इज दिस? ट्रुथ और रूटीन? Routine. रूटीन नहीं है, ये ट्रुथ है। ये ट्रुथ इसलिए है कि हम नहीं उसको चक्कर लगाते। ये देखो यहाँ पे ये खुद जा रहा है, ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे खुद जा रहा है, ये
ये भी ट्रुथ है और ये भी ट्रुथ है, लास्ट वन भी, ठीक है। आगे चले जरा। ट्रुथ वो है जो सब लोग उस पर एग्री करें, वो ट्रुथ है। और डेली रूटीन वो है जो सिर्फ आपको पता हो या आपके दोस्तों को पता होगी, जो उसमें इन्वॉल्व होंगे उनको पता होगी, बाकी लोगों को नहीं पता होगी, तो वो जनरल ट्रुथ नहीं है। जैसे यहाँ पे सबको पता है कि अर्थ गोज राउंड द सन, ये जनरल ट्रुथ है। सबको पता है कि नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट, ये जनरल ट्रुथ है। सब जो चीजें सबको पता हो, दैट इज कॉल्ड जनरल ट्रुथ। जो चीजें सिर्फ आपकी रूटीन में है या आपके दोस्तों की रूटीन में है, दैट इज कॉल्ड योर रूटीन। सही है, ओके आगे बढ़ते हैं जरा। जी, रिमेंबर वी से दैट ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, एस। ऊपर जब हम लगा रहे थे ना, है ना, जैसे अगर ही कहेंगे तो ही ड्राइव्स अ कार, ही ड्राइव्स अ बस, ही वर्क्स, राइट। ही शी इट या सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या फिर ई एस लगाते हैं, राइट। और यही यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आप ही शी या इट यूज करेंगे तो आप एस यूज करेंगे उनके साथ। डोंट फॉरगेट द एस, राइट। ओके, नाउ लुक एट हियर। आई के साथ आप एस यूज करेंगे? नो। नो। आई के साथ देखें, आई वर्क, एस नहीं यूज किया। लेकिन ही के साथ आप एस यूज करेंगे, ही वर्क्स, राइट। इसी तरह से देखें, ही शी इट के साथ सिर्फ एस यूज कर रहे हैं, बाकियों के साथ एस यूज नहीं करे। जैसे दे टीच, बट माय सिस्टर टीचेस। सिस्टर क्या है, सिंगुलर है ना। जो चीज सिंगुलर है उसके साथ भी एस या ई एस यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं। वी यूज डू और डज टू मेक क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस, राइट। हम डू लगाते हैं या डज लगाते हैं क्या करने के लिए, या तो क्वेश्चन बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तीन टाइप्स के सेंटेंस हैं, वन इज पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस है, एक क्वेश्चन सेंटेंस है, राइट। वैसे तो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस भी हैं, लेकिन हम फिलहाल तीन पे डिस्कस कर रहे हैं। तीनों में से अब दो पे ये क्वेश्चन हैं। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, डू या डज। अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो भी आप क्या यूज कर सकते हैं, डू या डज। ओके, अब जरा देखें, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, अगर हम नेगेटिव बना रहे हैं तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, सही है। अब जरा देखें, अगर मैं डू यूज करूंगा तो कौन सा प्रोनाउन यूज करूं, यहाँ से कौन सा प्रोनाउन यूज करूं, दे। डू दे वर्क, या डू यू वर्क, या डू वी वर्क, या डू आई वर्क, सही है। क्योंकि ही शी इट के साथ क्या लगेगा, डज। अगर मैं डज लगाऊंगा तो फिर क्या होगा, डज ही वर्क्स, ऐसा आएगा यहाँ पे, राइट। डज शी कम्स, राइट। डज शी कम्स, डज इट डू, राइट। मतलब जब डज लगा दूंगा तो फिर यहाँ पे अगर ये वर्ब्स हैं तो इसके साथ एस लगेगा, लेकिन अगर डज शी डू यहाँ पे एस नहीं लगेगा, क्योंकि डज लगा दिया ना मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे एस या ई एस डू में नहीं लगेगा। समझ में आ रही है। अगर मैंने बिगिनिंग में डज लगा दिया या डू लगा दिया तो जो यहाँ वाला जो है, ये डू भी एक वर्ब है, डू का मतलब है काम करना, राइट। तो इस डू में एस या ई एस नहीं लगाऊंगा अगर मैंने शुरू में डज लगा दिया, सही है। अब जैसे यहाँ मैंने डज लगा दिया है तो यहाँ पे वर्क के साथ एस नहीं लगाऊंगा, डज शी वर्क, डज ही वर्क। जब मैं हेल्प ये जो डू या डज लगाऊंगा तो मैं एस या ई एस इनके साथ नहीं लगाऊंगा। किस में नहीं लगाऊंगा, नेगेटिव सेंटेंस में भी नहीं लगाऊंगा, और किस में नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन सेंटेंस में भी नहीं लगाऊंगा, राइट। क्वेश्चन सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में मैं अगर ही शी इट भी यूज कर रहा हूं तो वर्ब्स के साथ एस या ई एस नहीं लगाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, ही डोंट वर्क, शी डोंट वर्क, शी डजंट कम, he doesn't come, right। he she it के साथ क्या लगा रहा हूँ, does। you के साथ क्या लगाऊंगा, you don't work, they don't come, I don't do, right।
IUV डे के साथ डू, ही शी इट के साथ डज, does, IUV डे के साथ डू क्वेश्चन के लिए, और ही शी इट के साथ डज, लेकिन वर्ब्स के साथ एस पुटअप नहीं करूंगा, राइट? आ रही बात समझ में? yes sir. ओके, आगे चलते हैं. रीड दैट सेंटेंस. I come from Canada. Where do you come from? राइट. व्हाट इज दिस? वेयर डू यू कम फ्रॉम? ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या क्वेश्चन है? Question है. क्वेश्चन है, राइट. अब जब यू लगाया तो यू के साथ क्या लगा रहे हैं? डू. वेयर डू यू, और देखें कम लगाया, ठीक है, एस नहीं लगाया इसके साथ, Yes. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. एक और क्वेश्चन है Would जी. would you like a cigarette? No thanks. I don't smoke. राइट. आई डोंट स्मोक. ही शी इट के साथ क्या लगता है? डज. IUV डे के साथ क्या लगता है? डू, राइट. अब जरा यहाँ पे देखें, ये कौन सा सेंटेंस है? आई डोंट स्मोक. I टाइप ऑफ don't smoke. कौन सा सेंटेंस है ये? पॉजिटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन? Yes sir. कौन सा क्वेश्चन सेंटेंस है ये? टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है ये? Negative. नेगेटिव. और ऊपर वाला कौन सा था? Question. क्वेश्चन, राइट. मतलब हम डू या डज यूज करते हैं या तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए. ओके जी, थर्ड पढ़ो. What does this word mean? और डज दिस, देखिए डज यूज किया हमने क्या बनाने के लिए? ये कौन सा सेंटेंस है? Question बनाने के लिए. ये Question बनाने के लिए. क्वेश्चन बनाने के लिए, राइट. नेक्स्ट वन. Rice does not to grow in good कोल्ड climate. क्लाइमेट. कौन सा सेंटेंस है? Negative. नेगेटिव. वेरी गुड. मतलब नेगेटिव बनाने के लिए या क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज यूज कर रहे हैं, राइट. ओके, नेक्स्ट. In the following example, do is also use the main verb. मैंने बोला था ना कि do जो है वो क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम यूज करते हैं और एज अ मेन वर्ब. do का मतलब है काम करना, ठीक है. अब जरा देखो, रीड करो ताकि आपको पता चले. ये देखो, यहाँ पे do यूज हो रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए और यहाँ पे do यूज हो रहा है एज अ वर्ब, राइट. रीड दैट सेंटेंस. What do you do? What do you do? इसका मतलब क्या है? रीड दैट वन. What's your job? What's your job? अगर हम किसी को पूछते हैं, if we are asking someone what do you do, इसका मतलब we are asking it what's your job, right? समझ आ रही है? Job का मतलब Yes. काम, right? Do का मतलब कोई काम, ठीक है. What do you do? यहाँ पे do यूज हो रहा है किसके लिए? Main verb यूज हो रहा है, right? Are you getting me? Yes sir. Okay. Yes. Read the answer. I work in a shop. I work in a shop, right? क्वेश्चन क्या था? व्हाट डू यू डू. व्हाट डू यू डू का मतलब है व्हाट्स योर जॉब, और आंसर इज आई वर्क इन अ शॉप. आई वर्क, एस क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? वर्क के आई है. आई है, राइट. ही शी इट होता या सिंगुलर प्रोनाउन होता तो एस लगाते. कैरी ऑन. नेक्स्ट वन. He is so lazy. कैरी ऑन, कैरी ऑन. He is ही इज सो लेजी. he is so lazy. He does not do anything to help me. राइट. अब जरा देखो, यहाँ पे डू किस लिए यूज हो रहा है? काम के लिए. काम के लिए. वेरी गुड. और ये किस तरह का टाइप ऑफ सेंटेंस है? Negative. नेगेटिव. और यहाँ पे ही यूज कर रहे हैं तो डज नॉट लगा रहे हैं. गॉट इट? Yes sir. ओके. यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि नॉट, ही डज नॉट एनीथिंग. ही डज नॉट नहीं लगाएंगे, ही डज नॉट डू लगाएंगे, राइट. ये कह रहा है डज नॉट के साथ डू लगाएंगे क्योंकि डू यहाँ पे क्या बता रहा है? काम के बारे में बता रहा है कि डू इज एक्चुअली क्या है? एक मेन वर्ब है जिसका मतलब है काम करना. ओके, रीड दैट वन. We use the present simple when we say how often we do things. हाउ ऑफन वी डू थिंग्स. हाउ ऑफन का मतलब है कितने बजे तक, कब तक, ठीक है. ऑफन का मतलब है कब तक, कितनी दफा करते हैं, राइट. वी से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, राइट.
अब जरा एग्जांपल पढ़ो तो आपको Yes. ऑफन और क्लियर हो जाए। ऑफन का मतलब है कितनी दफा, राइट? ओके, रीड दैट वन। I get up at o'clock every morning. एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग का मतलब है ये उसकी क्या है, डेली रूटीन है, राइट? ये एवरी मॉर्निंग शो कर रहा है दैट इज इट्स डेली रूटीन के वो 8 बजे उठेगा, राइट? ओके, Yes. नाउ लुक एट इट, दिस इज द क्वेश्चन, रीड दैट वन। How, how often do you go to the dentist? डेंटिस्ट, राइट? हाउ ऑफन का मतलब है कितनी दफा आप डेंटिस्ट के पास गए हो, राइट? हाउ ऑफन डू यू, पहले हम ऑफन नहीं यूज कर रहे थे, है ना? पहले हम एवरी Yes. मॉर्निंग नहीं यूज कर रहे थे। ये वो चीजें हैं जो हम यूज करेंगे तो पता चलेगा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, राइट? मतलब एवरी मॉर्निंग का मतलब रूटीन, ऑफन का मतलब उसकी हैबिट्स, राइट? उसकी हैबिट्स हैं कि कितनी दफा आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, राइट? ओके, Yes. नेक्स्ट वन। And does not drink tea very often. एंड डज नॉट ड्रिंक टी, इसका मतलब है वो अक्सर टी नहीं पीती, राइट? डज नॉट किस तरह का सेंटेंस है? Negative. नेगेटिव सेंटेंस है। और एन इज अ सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग डज नॉट, ठीक है? अगर प्लूरल होता तो हम क्या पुट अप करते? डू नॉट। अगर यहाँ दे Do होता, not. दे होता तो वी विल पुट दे डू नॉट ड्रिंक, राइट? Yes. लेकिन यहाँ पे एन है तो डज नॉट लगा रहे हैं। ही शी इट होता तो भी डज नॉट लगाते। ओके, लास्ट वन। In summer, John usually plays teams one or प्लेस टेनिस, राइट? tennis लुक एट इट, उसने प्लेस के साथ एस लगाया हुआ। क्यों एस लगाया प्लेस के साथ? in प्लेस के साथ एस क्यों लगाया हुआ है? प्ले क्यों नहीं लिखा हुआ, मालूम है? जरा सुने। इन समर जॉन, जॉन सिंगुलर है या प्लूरल है? pillar. सिंगुलर है। जॉन एक लड़का है। जॉन यूजुअली प्लेज, No. सिंगुलर रहता है तो हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब्स के साथ। ये किस तरह Yes, का, sir. किस टाइप का सेंटेंस है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन है? Negative. कहाँ से नेगेटिव है? नॉट तो कहीं पे नहीं लगा हुआ। यूजुअली प्ले टेनिस वंस और ट्वाइस अ वीक, ये क्या बता रहा है उसकी, वंस और ट्वाइस अ वीक? क्या बता रहा है ये क्या चीज बता रहा है उसकी? उसकी ये डेली रूटीन बता रहा है कि उसकी जो रेगुलर हैबिट्स हैं कि वो हफ्ते में एक दफा या दो दफा क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। जॉन क्या है, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग एस विद द प्लेस, राइट? ठीक है? Yes. यूजुअली का मतलब है अक्सर, वेरी ऑफन का मतलब है कभी कभार, राइट? ओके, अब कुछ और चीजें हैं जो हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। एक तो ये चीजें यूज कर देते हैं एवरी मॉर्निंग, हाउ ऑफन, और यूज कर रहे हैं यहाँ पे वेरी ऑफन या हाउ ऑफन या एवरी मॉर्निंग या यूजुअली, ठीक है? ये देखें, ये जो वर्ड्स हैं ये हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं कि एवरी मॉर्निंग, वंस और ट्वाइस अ वीक, यूजुअली और वेरी ऑफन, है ना? ये यू वर्ड्स हम कहाँ यूज कर रहे हैं? ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, राइट? ओके, अब जरा ध्यान सुनेगा, कुछ और वर्ड्स हैं जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। एक ये वर्ड है, रीड रीड दैट वन। I promise. नेक्स्ट वन, I apologize. अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब है माफी मांगना, राइट? प्रॉमिस का मतलब वादा करना, राइट? अब रीड करो जरा ये वाला। Sometimes we do things by saying something. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, When you promise do to do something. समथिंग, यू कैन से I promise. आई प्रॉमिस, राइट? जब आप कहते हैं कि मैं पक्का ये काम करूंगा, मैं पक्का आपका काम करूंगा,
तो आप क्या कहते हैं? आई प्रॉमिस, मैं वादा I करता हूँ मैं promise. आपका काम करूँ, है ना? ऐसे कहते हैं ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, आगे आगे चलते हैं। When you, जस्ट समथिंग, yes, sir. कैन से आई सजेस्ट, राइट? सजेस्ट का मतलब होता है मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, ठीक है? वो कहते हैं मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, आप ऐसा कर लें, मेरा मशवरा ये है कि आप ऐसा कर लें। सजेशन का मतलब होता है मशवरा देना। देखिए हम कभी कभी यूज करते हैं आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ मैं आपका काम करूँगा, ठीक है? और कभी कभी हम कहते हैं कि मैं मशवरा दे रहा हूँ आप ये काम कर लें, है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वी यूज द, या रीड तो करो Present simple. जी। प्रॉमिस और Promise. सजेस्ट इन द Yes. सेंटेंस लाइक दिस। हम कहीं प्रॉमिस यूज कर रहे होते हैं, कहीं सजेस्ट यूज कर रहे होते हैं, कहीं अपोलोजाइज यूज कर रहे होते हैं। अपोलोजाइज का मतलब है हम आमतौर पे अपोलोजाइज नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं आई एम सॉरी, है ना? हमसे Yes, कोई sir. गलती हो जाए तो हम कह देते हैं आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब आई अपोलोजाइज, कि मैं अपनी गलती मान रहा Yes, हूँ, sir. राइट? ओके, रीड दैट सेंटेंस। I promise I won't be late. अब जरा देखें, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, इसका मतलब ये है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं लेट नहीं हूँगा दोबारा, राइट? ओके, नेक्स्ट। What do you suggest I do? आप सजेस्ट करो मैं क्या करूँ, राइट? सजेशन का मतलब क्या होता है? मशवरा देना. right? Okay. In the same way we say I apologize, I advise, I advise का मतलब नसीहत करना, I insist का मतलब मैं जोर लगा के बोल रहा हूँ कि करो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। I agree, I refuse, refuse का मतलब मैं नहीं कर रहा, agree का मतलब मैं आपके साथ हूँ, राइट? ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है सारी? एक्सरसाइज शुरू Yes, करें। sir. ओके, Yes, sir. क्यों लगा हुआ है बहुत ज्यादा? ओके, जरा देखते हैं, रीड दिस वन। Complete the sentence using one of the following. राइट, अब हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं इन वर्ब्स को यूज करके। तो जब हम रीड करेंगे हमें पता चलेगा कि इन वर्ब्स में से कौन सा वर्ब लगाना है। फर्स्ट वन क्या है? इंडिया Yes. फर्स्ट, कॉज, देन Close, क्लोज, drink, राइट, live, लिव, open. ओपन। स्पीक कैंसिल किया हुआ है क्योंकि स्पीक उसने यहाँ पे यूज कर लिया, राइट? टेक भी और प्लेस, टेक्स प्लेस भी लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, we will use these verbs to complete this sentence, right? हम ये ध्यान करेंगे कि प्रोनाउन कौन सा यूज हो रहा है, ही शी इट यूज हो रहा है या सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है। अगर सिंगुलर नाउन यूज हो रहा है तो वी विल पुट एस और ईएस विद देम, ठीक है? हम पीछे पढ़ के आए ना कि अगर सिंगुलर नाउन यूज होगा या फिर ही शी इट यूज होगा तो हम उस पर एस लगाएंगे वर्ब्स के साथ। अगर आई यू वी जे होगा या फिर प्लूरल होगा नाउन तो हम एस नहीं लगाएंगे। नहीं याद है ना लगाएंगे. विद्या? ओके, Yes, फर्स्ट सेंटेंस इज डन फॉर यू, रीड दिस सेंटेंस विद्या। and speak German, German very well. very well, right? And speaks क्यों लगाया उसके साथ, s क्यों लगाया? विद्या, speak क्यों नहीं लिखा, speaks क्यों लिखा? क्योंकि उसके साथ नाम था. सिंगुलर, एंड सिंगुलर है ना? अगर सिंगुलर Yes. नाउन होगा तो हम एस पुट अप करेंगे या फिर ही शी इट होगा तो हम एस पुट अप करेंगे। आगे रीड करो, नेक्स्ट वन। I never डैश कॉफी, dash coffee. क्या होगा? कौन सा प्रोनाउन लगेगा ऊपर से, कौन सा वर्ब लगेगा? सॉरी Take. जी, कॉफी क्या करते होंगे आप जी? कौन? Drink. ड्रिंक, आई नेवर Drink coffee. ड्रिंक कॉफी, करेक्ट। ड्रिंक के साथ एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे. नहीं लगाएंगे, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। The the swimming pool dash it.
dash at 9 o'clock and dash at 18:30 every day। ये रूटीन बता रहा है स्विमिंग पूल की। जी क्या आएगा इसमें? कितने बजे? 9 बजे क्या होता होगा और 6:30 बजे, मतलब ये अगर हम उसको हाँ द स्विमिंग पूल ब्लैंक में क्या आएगा? ओपन। एस या विदाउट एस? विदाउट एस। विद एस। स्विमिंग पूल सिंगुलर है, राइट? द स्विमिंग पूल, पूल सिंगुलर है ना, तो एस पुट अप करेंगे। ओपन एट 9 o'clock एंड यहाँ क्या आएगा? क्लोजेस। एस पुट अप करेंगे, राइट? क्योंकि सिंगुलर है स्विमिंग पूल, तो हम दोनों जगह एस पुट अप, ओपन के साथ भी और क्लोज के साथ भी। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट बैड। Yes. Bad driving dash many accident. क्या आएगा यहाँ पे? बैड ड्राइविंग। अगर पूरी ड्राइव करें तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। Yes. कौन सा वर्ब यूज करें यहाँ पे? ड्रिंक हम यूज कर चुके हैं, क्लोज यूज कर चुके हैं, ओपन यूज कर चुके हैं, स्पीक भी यूज कर चुके हैं। अब क्या रह गया? लिव रह गया, टेक प्लेस रह गया, कॉज रह गया। जी कौन सा वर्ब यूज करें यहाँ पे? Cause. कॉज। विद एस या विदाउट एस? दिया कॉज दिस होगा या कॉज होगा? Cause. कॉजेस सिंगुलर है, देखिए जरा। बैड ड्राइविंग सिंगुलर है ना, तो कॉजेस होगा। ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट। My parents dash in a very स्मॉल फ्लैट। पेरेंट्स क्या करते होंगे फ्लैट में? क्या करते होंगे फ्लैट में पेरेंट्स? दो ऑप्शन रह गए, एक टेक प्लेस और एक लिव। take. जी Take. पेरेंट्स फ्लैट में रहते होंगे ना? Place. नो, लिव। माय पेरेंट्स लिव होगा या लिव्स होगा? Live होगा। लिव होगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स है। पेरेंट्स हैं, प्लूरल। शाबाश। नेक्स्ट। The Olympics games dash every 4 years. Every 4 years क्या होगा? लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास। Take. जी क्या होगा? Take. टेक प्लेस या टेक्स प्लेस? एस आएगा या नहीं आएगा? टेक प्लेस। टेक प्लेस। एस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लूरल है। गेम्स है, गेम्स प्लूरल है। गेम्स, वेरी गुड। ओके अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ 5-6 मिनट रह गए लेसन को कंप्लीट करने में। तो अगर यहाँ पे क्लास एंड हो जाएगी ना, तो मैं दोबारा कनेक्ट करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, ताकि इस लेसन को हम पूरा कर सकें, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डिस्कनेक्ट भी हो गए तो मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूँगा सेकंड क्लास में, ठीक है, ताकि लेसन पूरा कर सकें। ओके ओके, कैरी ऑन। नेक्स्ट वन, पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। आपने वर्ब्स को करेक्ट फॉर्म में लिखना है। आपको याद है हम नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? जी भैया, नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए क्या यूज कर रहे थे? डू, डज। डू और डज। अब जरा यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है, रीड करो। जाने, जैन डू नॉट, डज नॉट ड्रिंक, राइट। लिखो यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, आपने इसको यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब जैन जो है वो सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डज, ठीक है। और नेगेटिव बना रहे हैं तो डज नॉट ड्रिंक, ड्रिंक के साथ एस नहीं लगा रहे। अगर पॉजिटिव बना रहे होते
तो क्या लिखते हैं, जैन ड्रिंक्स, है ना, और नेगेटिव बना रहे हैं तो डज नॉट लगा रहे हैं, तो ड्रिंक के साथ एस पुट अप नहीं करेंगे। विनियर, आर यू गेटिंग मी? समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट ट्राई करो जरा। What time does the bank क्लोज at इन ब्रिटेन। close? अब बैंक सिंगुलर है या प्लूरल है? Singular. तो क्या यूज करें, डू या डज? Does. प्लूरल के साथ Do लगेगा. डू लगेगा। कंप्लीट करो जरा सेंटेंस ब्लैंक को पूरा करके। What time? What time? What times होगा? व्हाट टाइम डू What time do the bank बैंक्स close क्लोज in इन ब्रिटेन? Britain? राइट, क्वेश्चन बनाना है ना, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन बनाना है। तो व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज इन ब्रिटेन। ओके, नेक्स्ट ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन बनाना है। देखो हमने इसको देख के डू या डज लगाना है। अब मार्टिन है, मार्टिन सिंगुलर है या प्लूरल है? Martin singular. सिंगुलर है। कंप्लीट करो जरा सेंटेंस ये। वेयर, Where does Martin डैश come में क्या आएगा? from? Dash में मार्टिन Martin सिंगुलर है तो डू यूज करें या डज यूज करें? does. हाँ, कंप्लीट करो इसको। वेयर, Martin वेयर where Mart ना, where डज, वेयर does डज मार्टिन Martin कम come from? फ्रॉम। राइट, ऊपर वाले हमने क्या किया था, व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज। देखो यहाँ पे डू या डज ही आएगा सिर्फ। यहाँ तो इनको Yes, देख के डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। जैसे बैंक्स को देख के हमने डू लगाया, मार्टिन को देख के हम yes, डज लगा रहे हैं, ठीक है। अब यू की बारी आ गई। यहाँ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, डू या डज? do. नहीं does. यू के साथ, ही शी इट के Yes, साथ डज do. लगता है, यू के साथ क्या लगता है, Do. डू। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। What do you व्हाट डू यू डू, राइट, what do you do? राइट। Yes, ओके, नेक्स्ट इट के साथ क्या लगेगा। अब ये इट के साथ ये टेक लिखा हुआ है, ठीक है। इट yes. सिंगुलर है, तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ही शी इट के साथ एस या ईएस लगाते हैं ना। तो टेक्स्ट बन जाएगा. इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क, राइट, सही है। Yes, आगे, हाउ लॉन्ग, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है आपने। हाउ लॉन्ग, इट के साथ क्वेश्चन में क्या लगेगा, डू या डज? does. डज। जी, कंप्लीट करो इसको। हाउ लॉन्ग, How long does it take you? राइट, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? Yes, ओके, यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई के साथ एस लगेगा या ईएस लगेगा या नहीं? आई के साथ नहीं लगे नहीं नहीं लगेगा, तो लगेगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई, ये लिखा हुआ है, I play the आई प्ले द piano, पियानो, बट आई, अब नेगेटिव but सेंटेंस बनाना है। I आई के साथ not play very well. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज लगाते हैं। आई के Yes, साथ क्या लगेगा, I do. आई डू नॉट, आई डू नॉट, I do not play very well. वेरी गुड। ओके, लास्ट है, जल्दी से करो जरा, हमारे पास आखिरी मिनट है, फिर 2-3 एक्सरसाइज और रहती है, वो I आगे करें। don't अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, आगे बताओ जरा। व्हाट के साथ I don't understand it. दिस वर्ड है, दिस वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है? This singular. नहीं plural. वर्ड सिंगल है ना, Yes, तो क्या लगेगा, डू या डज? व्हाट, does. व्हाट डज What does this? दिस वर्ड मीन? सही है, Yes, समझ आ रही है ना ये कैसे लगाना है, डू या डज? सिर्फ यहाँ पे डू या डज लगाना है, बाकी yes, यहाँ sir. से देख के लगाना है ब्रैकेट से। गॉट इट?